ओके प्यारे बच्चों, ऑल वेल, मजे में? सो नाउ लेट अस सी चैप्टर नंबर 7, थ्योरी पोर्शन खत्म। तो अभी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। बहुत छोटा सा है पोर्शन और इनिशियल सम्स तो बहुत इजी है, बस थोड़ा समझना है और आपको काम कर लेना है। सो इट इज ऑन पेज नंबर 266, राइट? सी द फर्स्ट एग्जांपल 7.1। A 100 ohm resistor, so that means you can say this R is equal to 100 ohm, right? Connected to 220 volt, so V is equal to 220, right? Connected to 220 volt, so this voltage is the supply voltage, and supply voltage is always RMS voltage. See, the capital symbol is given to you. Now, with a 50 hertz frequency, so this nu is equal to 50 hertz, right? Now, what is the RMS value of the current in the circuit? Current की RMS value कितनी होगी वो find out करना है, right? So how can I find? So you can say that I, this is equal to, you can say IRMS. ये V जो है ना उसको VRMS भी बोला है आगे. So I is equal to IRMS is equal to, you can say that VRMS upon mod of Z. But with this supply only resistance is connected, so what can I say? So my dear friends, this I is equal to VRMS, so it is 220, and mod of Z, so it is just R, so it is 220 divided by 100, so therefore this I, or you can say that RMS, it is equal to 2.2 ampere. This is my answer, right? See the answer, so it is 2.2. Then after second में क्या find करने के लिए? So this is A. Now my dear friends, what about B? B में क्या चाहिए? So the question B is that what is the net power consumed over a full cycle? My dear friends, this is only resistance, so power must not be equal to 0 in this one. So how can I find out the power? So power P is equal to, you can say that I square RMS into this R. That's it. The I square, you can say that 2.2 square. Multiply with R. So R is 100. So what about the answer? So it is 484. Right? So it is 484. You can say that what? You can also find out this one with the help of power P is equal to V square RMS upon R. What about V? So it is 220 into 220 divided by R. And R is what, my dear friends? See, R is what? 100. So your answer is 0, 0 cancel. Square of, so see, if you multiply with 100, then you are getting the answer, right? So it is again 484 watt. So this is your answer. बहुत इजी है, कुछ कैलकुलेशन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज 7.2. सी, the peak voltage of an AC supply. यहां पे clearly बोल दिया है peak voltage. So you have to write VM. This VM is equal to 300 volt, right? The peak voltage of an AC supply is 300 volt. What is the RMS voltage? So आपको चाहिए VRMS, कितने हैं वो चाहिए, correct? Now, okay, पहले ये find out कर लेते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी. So number A, VRMS is equal to VM upon root 2. You know the VM, so it is 300, right? Divide by root 2. So your answer is कितना हो जाएगा? 212.2 volt. मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटेड है, चिंता मत करो, तो मैं इधर से देखकर आंसर यहाँ पे लिख देता हूं.
आपके पास कैलकुलेटर है, आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करके आंसर देना पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लीजिए आप, आपके लिए भी अच्छा है ना बच्चों। वेरी गुड। नंबर बी में क्या चाहिए? द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट in an AC circuit is 10 ampere. The RMS value of the current in an AC circuit is 10 ampere. Okay. IRMS. Right. The RMS value of the current in AC circuit is equal to 10 ampere. Correct. What is the peak current? आपको क्या चाहिए? So peak current चाहिए बच्चों, आइए। Right. कैसे लाएंगे पीक करंट? इससे उल्टा करेंगे। सो आई एम इट इज इक्वल टू इट इज IRMS इंटू √2, राइट। तो अभी IRMS कितना है बच्चों? सो मैंने बताया ना 10 एंड मल्टीप्लाई विथ √2। अभी आप कैलकुलेशन करके आंसर लिख दो, मैं नहीं लिखता हूं, राइट। वेरी गुड। तो ये हो गया इसका आंसर, और कुछ पूछा ही नहीं है ना। Question that is 7.3. See, a 44 millihenry inductor. So L is equal to 44. क्या लिखा है साथ में? मिली हेनरी, मतलब 44 into 10 to the power minus 3 Henry, right? Inductor is connected to 220 volt. So you can just write VRMS, connected बोला है ना, सप्लाई बोल दिया है, so it is 220 volt, right? The frequency is 50 hertz, so this frequency nu is equal to 50 hertz, right? Okay, AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. चाहिए क्या आपको? IRMS चाहिए, right? अभी IRMS के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मॉड Z, दैट मींस इंपेडेंस। तो मैं IRMS का फॉर्मूला लिखो, IRMS इज इक्वल टू, यू नो दैट VRMS अपॉन मॉड ऑफ Z। सो VRMS तो मुझे मालूम है 220, बच्चों मॉड Z कहां से लाऊंगा, है ना। सो यहां पे लिख सकते हो मॉड Z इंपेडेंस इज इक्वल टू ओनली XL, राइट। एक्सेल तो वैसे ही वैल्यू है, इसका मॉड नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज ओमेगा एल, एंड व्हाट इज ओमेगा एल? सो ओमेगा इज 2 पाई न्यू इनटू दिस एल। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इट इज 2 into 3.14 into 50 into 44 into 10 to the power minus 3. Then after this is your answer. Okay. इसके साथ में जो आंसर मिलेगा वो 13.816 ओम मिलेगा, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ इट इज 13.816, राइट। सो अभी इसका आंसर मैं ढूंढ लूं, तो कैलकुलेशन से इसका आंसर मिलेगा 15.92 एम्पियर। सो दिस इज योर आंसर। गेट इट? एकदम से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। नाउ 7.4 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज में से भी 7.4 है मेरे पास। A 60 microfarad capacitor C is equal to 60 माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power minus 6 farad is connected to 110 volt. So this V is equal to 110 volt, right? Okay. Supply, right? 110 volt supply. So it is nothing but VRMS, right? With 50 hertz AC supply. So 50 nu is equal to 50 hertz, right? Okay. Determine the RMS value of the current in the circuit. फिर से वही क्वेश्चन प्यारे बच्चों, IRMS ही चाहिए, राइट? तो मुझे IRMS के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? सो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन मॉड Z। तो अभी VRMS तो डिसाइडेड, यहाँ पे 110 दिया है मुझे, कितना दिया है? 110। अभी मॉड Z कैसे लाऊंगा मैं? सो मॉड Z
is equal to 1 upon omega c. So it is 1 upon 2 pi nu into c. So it is 1 upon, क्या करूंगा मैं? So 2, 3.14 and nu that is 50 and c is what? C is 60 into 10 to the power minus 6. अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है आपको. So your answer is फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बच्चों आपको? 60 हर्ट्ज. मैंने 50 लिखा, यहां पे फ्रीक्वेंसी है 60, so यहां पर भी 60 करना पड़े, राइट? So your answer for this one is equal to, you can say, 44.23. So it is 44.23 ohm. अब ये यहां पे डाल देते ना. So it is 110 divided by 44.23. So your answer is 2.487. 2.487. Sorry, current है ना? So it is ampere. Right? So this is your answer. Correct? Now, देखो कितने छोटे छोटे सम्स हैं, दो लाइन में खत्म हो जाते हैं, है ना? जो डिस्क्रिप्शन आपको 1-2 लाइन बीच में लिखनी होती है वो आपको मैंने जो पीडीएफ दे दिया है ना उसमें से लिखना है. थोड़ा बहुत उसमें से काम करिएगा, अदरवाइज इसमें मार्क्स कट हो सकते हैं आपके. यहां पे लिखना पड़ता है, यहां पे इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, यहां पे आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट. तो ये सब मैं बोल देता हूं, आपको वो लिखना है क्योंकि आपको मार्क्स लेने हैं. अगर आपने भी लिख दिया नहीं, आपने भी नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. बहुत सारे ऐसे हमारे पास बच्चे ये साल लास्ट अभी जो एग्जाम हुई उससे पहले क्या होता है, प्रॉपरली वर्क नहीं होता है. आप ब्रिलियंट हो ही ऐसा समझो, सब बच्चे ब्रिलियंट है, सब के सब, लेकिन काम जो है ना वो ब्रिलियंट वाला करो. बस आपका काम आपका ब्रिलियंट वाला ही होना चाहिए. फिर काम ब्रिलियंट वाला नहीं है और आपका दिमाग अच्छा है लेकिन उससे बात नहीं बनने वाली. अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो काम भी अच्छा ही करना पड़ेगा. आई बात समझ में? आपको कुछ अच्छा करना है ना तो काम भी अच्छा ही करना पड़ेगा. फिर से बोल रहा हूं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वर्क प्रिसाइसली. बहुत धीरे से अच्छे से काम करना पड़ेगा. क्लियर? लेकिन परफेक्ट, है ना? ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट 7.5 उसमें कुछ बोला है, देखो ना यार आपको 7.5 है तो यहां पर ही मैं सॉल्व करता हूं. क्यों यहां पर सॉल्व करता हूं पता है? क्योंकि उसके साथ में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा इसीलिए. In exercise 7.3 and 7.4, what is the power, net power, absorbed by each circuit over a complete cycle? Explain your answer. So, if only inductor is in the circuit, the power is given by, therefore the power P is equal to V into I into cos phi. What is phi? Phi is the phase angle. So here this power is equal to V into I into cos pi by 2, you can say my dear friends. And this pi by 2 is what? So this pi by 2 is 0. ये pi by 2 क्यों आया? So आप लिख सकते हो the phase difference between voltage V and I is pi by 2 and that is pi. इसीलिए वहां पर पावर आपको 0 मिल रहा. यहां पे नहीं था, उसके आगे वाले सब में नहीं था. क्यों? सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, इसीलिए वहां पे पावर 0 नहीं था. सो फॉर अ कंप्लीट साइकिल द पावर इज 0, दैट मींस द पावर डेसिपेटेड इज 0. लेकिन फिर भी सर्किट काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि सर्किट बंद हो गया है. लेकिन इसमें से जो करंट मिल रहा है ना, इट इज अ वॉट लेस करंट. पावर कंज्यूम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जितना चाहिए उतना दे दिया, फिर काम खत्म. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इफ ओनली capacitor is connected in the circuit, power P is equal to again V into I into cos, again I just write pi by 2, so it is 0.
again you can say that phase difference between V and I is pi by 2, and therefore the power is 0. इसीलिए ये पावर 0 हो गया. आई बात समझ में? तो ऐसे अगर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड है सर्किट के अंदर, तो टोटल पावर इसके लिए 0 होता है. बट नॉट इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है, ध्यान में रखना है. गॉट इट? ओके डियर, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? 7.6 नंबर. Obtain the resonant frequency omega r of a series LCR circuit. बहुत पूछ लिया हम लोगों को. L is equal to 2 Henry. ये 0.0 नहीं लिखते हो ना तो चलता है. Then C is equal to 32 into 10 to the power minus 6 farad. Then after R is equal to 10 ohm. So R is equal to 10 ohm, right? What is the Q factor or Q value of the circuit? That means Q value कितना है वो आपको पूछा है. You can find it directly. आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर समझा सकते हो, लेकिन अगर पहले आपको ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए, सो देयर इज अ फॉर्मूला अंडर रूट एलसी. सो आप कर सकते हो ऐसा 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. So your answer is under root this 2 into 32 64 10 to the power minus 6. So your answer is 1 upon 8 into 10 to the power minus 3. So you just say 1000 divided by 8. तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, right? And your answer for this omega r, it is equal to 125 hertz. Sorry, you find it omega r na, so it is radian per second. If you find out this omega r, then it is a radian per second. Now, after this, what is the value of Q factor? So Q factor और Q value, factor की जगह पर कई बार value भी यूज किया जाता है. ओमेगा r into L upon this r. ओमेगा r का वैल्यू आपके पास है 125. What is L? L is the inductance of the inductor, so it is 2. And what about the resistance, my dear? So it is 10. So it is 250, right? Divided by 10. So your answer is 25. Quality factor के पास कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान में रहे. It is frequency divided by the frequency. Second method. क्या है सेकेंड मेथड? सो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, ये वाला है. सो अभी मेरे पास क्या हो जाएगा? सो 1 अपॉन 10 अंडर रूट एल, एल का मतलब होता है 2, डिवाइडेड बाय 32 है. सो इट इज 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, माई डियर फ्रेंड्स. सो इट इज 1 अपॉन 10 अंडर रूट. So it is 1 upon 16 and it is 10 to the power 6 plus. ऊपर लेके गया मैं, अभी रूट नहीं निकाला है. So now रूट निकाल देता हूं. It is 1 upon 10, it is 1 upon 4 and 10 to the power 3. अभी ये 10 के साथ में ये जाएगा. So this Q is equal to 100 divided by 4. So therefore this Q is equal to 25 again. Get the answer? एकदम इजी मेथड है. अगर ये वे से नहीं जाना है तो ये फाइंड आउट कर लो. देख लेते हैं आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है कि नहीं पूछा है. ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, तो करना पड़ेगा भाई, ये पोर्शन तो करना पड़ेगा. अगर यहां से यहां पे स्विच ओवर होके ये लाओ तो चलेगा, अगर ये नहीं है तो ये कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. गेट द आंसर? कोई तकलीफ यहां पर नहीं ना? फाइन. बच्चा पार्टी कैसे हो? 7.7, right? Some numbers, question number 7.7, right? क्या है देखते हैं. See, a charged 30 microfarad capacitor C is equal to 30 into 10 to the power minus 6 micro बोला है ना farad, right?
then after is connected to 27 millihenry inductor. So L is equal to 27 10 to the power minus 3 Henry, right? Then what is the angular frequency of the free oscillations? ओमेगा चाहिए आपको, बहुत अच्छे से मिल जाएगा. ओमेगा is equal to 1 upon under root LC. So this is 1 upon L is 30 into 10 to the power minus 6, right? And C, okay, मैंने C लिख दिया. And L is 27 into 10 to the power minus 3. प्यारे बच्चों, सीखना ये है आपको 1 upon under root C. ये 0 मुझे इसको देना पड़ेगा या इसको देना पड़ेगा. सो जस्ट मैं ऐसा लिख रहा हूं 3 into 27 into 10 to the power, ये -2 हो जाएगा अभी. सो दिस इज -8. अभी रूट निकाल सकते हो इसका. सो इट इज अंडर रूट 81 and 10 to the power minus 8. So this omega is equal to 1 upon 9 into 10 to the power minus 4. So it is 10 to the power 4 divided by 9. So my dear friends, it is this one divided by 9. So this is your answer for radian per second. Correct? डिवीजन मतलब कर सकते हो आप कैलकुलेटर से, तो आपको उसका आंसर आराम से मिल जाएगा. Get the answer? Very nice. Then next question हमारे पास 7.9 है, sorry 7.8. वो भी कर लेते हैं. देखो 7.8. Suppose the initial charge on the capacitor in exercise 7.7 is 6 millicoulomb. So charge Q is equal to 6 millicoulomb बोला है, 10 to the power minus 3 coulomb, right? What is the total energy stored in the circuit initially? Total energy U चाहिए, कितनी है? So therefore this U is equal to Q square divided by 2C. My dear friend, this is UE. So this UE is equal to Q का square करोगे 6 into 6 into 10 to the power minus 6 divided by 2 into the C is 30. So 30 into 10 to the power minus 6. ये निकल जाएगा. So UE is equal to, what is the answer? So your answer is up 36 divided by 60 ले सकते हो. So UE is equal to, this is your answer, right? What is the total energy at later time? कोई भी टाइम के ऊपर ले लो. Energy at any time is U is equal to blank जो. ये जो आंसर आता है वही रहेगा सर्किट के अंदर. क्यों? तो जो कैपेसिटर का था वो इंडक्टर को दिया, इंडक्टर के पास था वो कैपेसिटर को दे दिया. बार बार चेंज होता रहेगा एंड फुल एंड फाइनल यही आंसर आपको मिलेगा. आ रहा है ना समझ में? बस यही आपको समझना है कि इंडक्टर से कैपेसिटर और कैपेसिटर से इंडक्टर में एनर्जी ऑलवेज चेंज होता रहता है. ओके फाइन.